لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سا سب سے بڑا گناہ ہے جس گناہ کے بعد دوسرے گناہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ انسان کا قدم کب بہکتا ہے، انسان کے دل میں جذبات کب انگڑائیاں لیتے ہیں، انسان برائیوں کے دلدل میں کب ڈوب جاتا ہے، انسان کے ہاتھ اور پیر بدکرداری کی طرف کب آمادہ ہوتے ہیں، وہ کون سا دروازہ ہے جس کے کھل جانے کے بعد انسان ان برائیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ نگاہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے گزرنے کے بعد باقی سارے دروازے کھلا کرتے ہیں، اس لیے کہ پہلے انسان کی نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر اس کا پورا وجود بہکتا چلا جاتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ نگاہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اسی لیے پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، للمؤمنین، مومنوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم عطا فرمایا، اور آپ جانتے ہیں یہ آیت اللہ عز و جل کی جانب سے اتنی عظیم آیت ہے کہ آپ صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیں، تابعین کی زندگی کا جائزہ لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کا چلنا رسول اعظم کے نقش قدم کے مطابق تھا، اور اسی وجہ سے ان کی نگاہیں ہمیشہ جھکی جھکی رہتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب حضور کی نگاہوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا کے انسانوں کو عورتیں دعوت نظارہ دے رہی ہیں، بدکرداریاں دعوت نظارہ دے رہی ہیں۔ آج کا نوجوان رات کی تنہائی کے اندر یوٹیوب پر جا کر گندی پکچریں دیکھ رہا ہے اور گندی تصویریں دیکھ کر اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ جانتے ہیں آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بندے پر لعنت فرمائی جو ایسی غلط چیزوں کو دیکھا کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کل بروز قیامت اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی سلاخیں ڈالی جائیں گی جو اپنی نگاہوں کو آوارہ کر دیا کرتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ دیکھیں سلطان الہند غریب نواز علیہ الرحمہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، اللہ اکبر۔ جب سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ انا ساگر کے قریب تشریف فرما تھے، اس وقت سچویشن یہ ہوئی کہ پرتھوی راج نے یہ سوچا تھا کہ اس بابا کے پاس دنیا کے لوگ مائل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اسلام بھی قبول کر رہے ہیں، ان کے دیوانے بھی بنتے جا رہے ہیں، ان کے ارد گرد گھومتے بھی چلے جا رہے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو یہاں سے اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے اس نے دیکھا کہ سلطان الہند کو اللہ عز و جل نے بڑا اونچا مرتبہ عطا کیا ہے، ہزارہ طاقتوں کے باوجود غریب نواز کے ماننے والوں کی تعداد کم نہیں ہوتی، ان کے قریب حلقے کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس سلطان الہند کو کیسے اٹھایا جائے، اس نے جادوگروں کو بلایا، اور جادوگروں کو بلانے کے بعد ان سے کہا کہ معین الدین پر جادو کرو اور کسی بھی طرح سے انہیں شکست دو، اور شکست دینے کے بعد یہاں سے نکلنے پر مجبور کرو۔ جب بسیار کوشش کی گئی، سلطان الہند غریب نواز علیہ الرحمہ نے اپنے قریب آیت الکرسی کا حصار کر لیا، جس کی وجہ سے جادو کا اثر ان پر نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا جادوگر تھا
تھا, उसने कहा मोइनुद्दीन पर जादू का असर उस वक्त होगा जब मोइनुद्दीन की निगाह खता खा जाए. अगर उनकी निगाहें गंदी हो जाएंगी तो जादू करना हमारे लिए आसान होगा. तो उस वक्त पृथ्वीराज ने ये कोशिश की कि उस जमाने के अंदर, उस दौर के अंदर, उस शहर के अंदर मौजूद जो बड़ी बड़ी हसीनाएं थी उनको मदऊ किया गया और कहा गया जाओ अना सागर में तुम नहाने के लिए जाओ. जब तुम नहाओगी तो किनारे बैठा हुआ ये मोइनुद्दीन तुम्हारे हुस्न में गिरफ्तार हो जाएगा और तुम्हारे पर निगाह पड़ेगी. उसके बाद जादू करना आसान हो जाएगा. लेकिन अल्लाह अकबर, सुल्तानुल हिंद तिलावत कुरान मुकद्दस में मसरूफ थे, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कलाम की तिलावत कर रहे थे. लड़कियां आई, अना सागर में नहाने लगी, लेकिन मेरे ख्वाजा कुरान में इतने डूबे हुए थे कि उनकी तरफ निगाह उठा करके भी नहीं देखी. वो नहाकर निकल गए. जब निकल गई तो निकल जाने के बाद उन्होंने जादूगर से कहा पता नहीं इसकी निगाहों में किसका हुस्न जमाल समाया हुआ है कि ये हमारी तरफ तो निगाह उठाकर देखता ही नहीं. उसके बाद पृथ्वीराज ने ये इरादा किया कि मैं अपनी बेटी जिसके हुस्न के चर्चे पूरे शहर के अंदर हैं, मैं उसे आमादा करूं ताकि ये जाकर मोइनुद्दीन को बहका दे. अल्लाह अकबर. बेटी को तलब किया गया और तलब करने के बाद उससे कहा गया बेटी आज मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूं, जाओ और जाकर मोइनुद्दीन को अपने दामे फरेब में गिरफ्तार कर लो. वो बन सवर करके जाती है. अब्बा घबराए नहीं, मैं अभी इन्हें अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लूंगी. वो बन सवर करके गई. अल्लाह अकबर. मेरे ख्वाजा तिलावत में मसरूफ हैं, निगाह उठाकर उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं और काफी देर तक जब उसकी तरफ आपने इल्तिफात नहीं फरमाया तो उस लड़की ने दूर से आवाज दी या मोइनुद्दीन. इतना सुनना था कि मोइनुद्दीन के मानी होता है दीन की मदद करने वाले. अल्लाह अकबर. जैसे ही उसने कहा गरीब नवाब ने निगाह झुकाई और उसके बाद एक निगाह उठा करके फरमाया लब्बैक या बिनती, मेरी बेटी मैं हाजिर हूं. इतना कहना था उसके दिल से कुफ्र निकल गया और वो आगोश इस्लाम में कदम रखने पर मजबूर हो गई. ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारी नजरें जमीन की चीजों को नहीं देख पाती. और सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाह जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली. मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना. ये गौसे पाक को नजर कहां से मिली? ये गौसे पाक को कमाल कहां से मिला? ये ख्वाजा की नजर में तासीर कहां से पैदा हुई? तस्लीम करना पड़ेगा कि इनकी निगाहें महफूज थी, इनकी निगाहें झुकी झुकी रहा करती थी, इनकी निगाहें कभी गलत चीज की तरफ उठती नहीं थी. मुसलमानों, आज हमारी तबाही का सबब यह है कि हम राह चलते हैं तो न जाने क्या क्या देखते चले जाते हैं, किन किन चीजों को देखते चले जाते हैं. और आज का मुसलमान कहता है हम क्या करें, हम बचना चाहते हैं बच नहीं पाते, हम बचना चाहते हैं कोशिश के बावजूद निगाहें खता खा जाती हैं. आइए इसका इलाज भी अल्लाह के बरगुजीदा बंदों ने अता फरमाया. जानते हैं आप हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक नौजवान हाजिर आया और हाजिर आकर के अर्ज करता है हुजूर मैं क्या अर्ज करूं, कई गुनाहों में गिरफ्तार था, अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे मैं बचना चाहता हूं फिर भी नहीं बच पाता. अल्लाह अकबर. मेरे बायजीद बुस्तामी ने उससे ये नहीं पूछा कि वो कौन सा गुनाह है, लेकिन उसी ने अर्ज किया हुजूर वो गुनाह ये है मैं जब राह चलता हूं तो लड़कियों पर मेरी नजर पड़ जाती है, मेरी औरतों पर नजर पड़ जाती है. मैं बहुत कोशिश करता हूं कि अपनी निगाहों को झुका लूं लेकिन मैं ये कर नहीं पाता. मुसलमानों गौर से सुनो बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने क्या जवाब दिया. इरशाद फरमाया बेटे एक नुस्खा मैं तुझे दे रहा हूं, इस पर 15 दिन तक अमल करना, तेरी ये आदत निकल जाएगी और उसके बाद तू मेरे पास आना. उसने कहा ठीक है. अल्लाह अकबर.
बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा ने फरमाया, जब तू राह चल रहा हो और तेरा नफ्स तुझे किसी लड़की को देखने का हुक्म दे, उस वक्त तू ये तसव्वुर करना तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा ने जब ये फरमाया, सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल गए और उसके बाद वो रवाना हुआ। 15 रोज के बाद जब बायजीद बुस्तामी की बारगाह में हाजिर हुआ तो रोते हुए कह रहा था, अब तो किसी और चीज को देखने की तमन्ना ही नहीं होती, अब तो निगाह झुकी रहती है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, ये निगाह पहले खता खाती है, ये निगाह पहले किसी को देखती है, फिर उसकी मोहब्बत दिल में पैदा होती है, फिर उसको पाने की कोशिश पैदा होती है, फिर उसको पाने के लिए इंसान के हाथ भी खता खाते हैं, उसके पैर भी खता खाते हैं, उसकी जबान भी खता खाती है और न जाने वो किन किन राहों पर चल पड़ता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन कुछ बंदे अल्लाह ने ऐसे भी पैदा फरमाए हैं जो राह चलते हैं तो निगाह उठाकर गैर की तरफ नहीं देखते, निगाहें नीची किए किए चलते हैं, झुकाए झुकाए चलते हैं। अल्लाह अकबर। अगर आपकी निगाह या किसी की निगाह या हम सब की निगाह अगर किसी लड़की की तरफ अचानक पड़ जाए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अचानक पड़ने वाली निगाह पर माफी है, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने कसदन उसे देखा तो कयामत में उसका मुआखजा होगा। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा देखें, ये गंदी पिक्चरों को देखने के बाद जज्बात मुश्ताइल हो रहे हैं, वो यूथ को देखने के बाद आज नौजवान की जवानी बर्बाद हो रही है। आज सिनेमा घरों में जाने की बजाय इंसान यूट्यूब पर न जाने क्या क्या देखकर अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये आंख किसने अता फरमाई है? तो कुरान कहता है, अलम नजअल लहू ऐनैन, क्या हमने उन्हें दो आंखें नहीं अता फरमाई? अल्लाह अकबर। आंख देने वाली जात अल्लाह की है, आंख देने वाली जात पालनहारे हकीकी की है, आंख देने वाली जात माबूदे बरहक की है। अल्लाह अकबर। वही परवरदिगार अपने महबूब के जरिए मोमिनों को हुक्म दे रहा है, आंख मैंने दी है, अब महबूब तुम कह दो कि ये निगाहें नीची करके चला करें। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, नाफरमानी खुदा की करके इज्जत हासिल करनी है, अल्लाह के फरमान का मजाक उड़ा करके इज्जत हासिल करनी है, खुले आम अल्लाह की नाफरमानी करके और बदकिरदारी में डूब करके इज्जत की तमन्ना रखनी है। ये हो ही नहीं सकता कि कोई कांटे का बीज बोए और उसके बाद गुलाब की उम्मीद रखे। आज हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है, आज हमारी सोसाइटी तबाह हो रही है। आइए मैं आपको बताऊं, एक जमाना था कि मुसलमान के पड़ोस के अंदर गैर मुस्लिम फैमिली रहने में फख्र महसूस करती थी कि मुस्तफा का दीवाना कभी हमारी बच्ची पर गलत नजर नहीं डालेगा। लेकिन आज हम देखें हमारा हाल क्या हो गया, हमारी सिचुएशन क्या हो गई, हमारा हाल क्या हो गया। ऐसे जालिम को भी हमने देखा है जो मस्जिद की टोपी पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ करके निकले और बाहर कोई लड़की निकली, फौरन उसको घूरना शुरू कर दिया। नादान, थोड़ी देर के लिए भी तुझ पर नमाज का असर नहीं रहा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये निगाह सबसे पहले खता खाती है और उसके बाद इंसान का वजूद खता खाता है। अल्लाह अकबर। बड़ी प्यारी बात एक मुफस्सिर ने फरमाई, उससे उन्होंने फरमाया, तुम्हें मालूम है निगाह को झुका लेने के एवज में, निगाह को गुनाह से बचा लेने के एवज में इंसान को क्या चीज मिलती है? अगर आप कुछ आज की गुफ्तगू में याद रख सके या ना रख सके, मेरा ये जुमला जरूर याद रखिएगा। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा मुसलमान ऐसा है जो अल्लाह की निगाह में आना न चाहता हो? नमाज इसलिए पढ़ते हो ताकि मौला राजी हो जाए, ज़कात इसलिए देते हो ताकि मौला राजी हो जाए, हज इसलिए करते हो मौला राजी हो जाए, उसकी निगाह में आ जाएं, वो हमें नेकियां करते देख ले। अल्लाह अकबर। मुहद्दिस फरमाते हैं, मुफस्सिर फरमाते हैं, बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अल्लाह की निगाह में आना चाहता है तो गैर महरम को देखने से अपनी निगाह को बचा ले, वो अल्लाह की निगाह में आ जाए।